Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं जो साइड से निकलकर जा रहे हैं और पीछे से एक महिला की आवाज आती है। वह महिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तीखे सवाल करती हुई सुनाई दे रही है। हालांकि वो महिला कौन है उस वक्त समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है उसके बाद पूरी की पूरी गुत्थी सुलझ जाती है और सारी डिटेल निकल करके सामने आ जाती है। ये वीडियो दरअसल नॉर्वे का बताया जा रहा है और यहीं पर नॉर्वे में एक पत्रकार थी जिनका नाम है हेले लिंग। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया, जिसके बाद उन्हें अब खूब ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर जिस तरह से ये वीडियो वायरल है उसके बाद तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद जो करारा जवाब है वो भी भारत की तरफ से दिया गया है। भारत की तरफ से IFS ने बड़ा तीखा जो जवाब है वो दिया है, और वो जवाब क्या है पहले आप इस वीडियो में सुनिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि ये कौन है जिन्होंने नॉर्वे की पत्रकार को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। सुनिए। We hear a lot of people asking questions about why this, why that. But let me tell you this. We are 1/6 of the total population of the world, but not 1/6 of the problems of the world. We have a constitution which guarantees the rights of the people, fundamental rights of the people. We have equal rights for the women of our country, which is very important. In 1947, we gave the freedom to vote for our women. We won the freedom together, and day one itself. Many countries I know, the voting right for women came after several decades after India gave that freedom. This because we believe in equality, we believe in human rights. And what is the best example of human rights? The right to change government, the right to vote. And that is what is happening in India. We are so proud of that. But we have a constitution, as I said, which guarantees the fundamental rights of our people. If anyone whose rights are violated, they have the right to go to court. Some of you are from Indian media. You know how many stories appear. We have how many breaking news coming every day in the evening. At least 200 TV channels in Delhi alone, in English language, in Hindi language, and multiple language. People have no understanding of the scale of India. People have no understanding. They read, one or two news reports published by some God-forsaken, ignorant NGOs, and then come and ask questions. Don't worry about it. We are proud to be a democracy. We are a democracy. Actually, if you look at it, let me share something very interesting. India is a democratic society. It is not in 1947 we became democracy. We were a democratic society for centuries, for millennia, and we are proud of that. If you look at it in the history of India, which continues even today, you will see that whenever there was persecution anywhere in the world, they came to India, and Indian society accepted everyone. That is why we have this diversity in India. We embrace the world. We did not eliminate. We did not go for ethnic cleansing, which many countries today have only one religion. Today only have one ethnicity. Why? Their forefathers eliminated the rest of them. That is not how we did it. Okay? We have diversity because we have tolerance. We have diversity because we embrace diversity. Whenever the world has faced problems, we welcome them. Same thing we did for COVID. जिनका वीडियो आपने सुना, इनका नाम है सीबी जॉर्ज और ये भारतीय राजनयिक हैं, वरिष्ठ राजनयिक हैं। इनका वीडियो जैसे ही सामने आया वैसे ही ये समझ में आ गया कि भारत को नीचा दिखाने की कोशिश अगर विदेशी धरती पर की जाएगी तो भारत की तरफ से उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। इस बात को सभी को ध्यान में रखना चाहिए, चाहे विदेश में कहीं पर भी हो। अगर भारत की सभ्यता पर सवाल उठेगा, भारत की संस्कृति पर सवाल उठेगा, भारत में आजादी पर सवाल उठेगा, भारत में धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठेगा, तो
उसका जवाब इसी तरीके से, करारे तरीके से दिया जाएगा। और अब आप बात करते हैं विदेश मंत्रालय की तरफ से जो ये ब्रीफिंग की गई थी, उस ब्रीफिंग के दौरान जो पत्रकार ने सवाल किया वो भी आपको सुनवा देते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि सीबी जॉर्ज आखिर कितने ज्यादा पावरफुल हैं और किस तरह से वो भारतीय राजनीति में अपनी सेवा दे रहे हैं। Why should we trust you? Can you promise that you will try to stop the human rights violations that goes on in your country? And also, will the Prime Minister start taking critical questions from the Indian press at some point in the future? And also, if possible, I would like you to answer straight away. सीबी जॉर्ज की अगर हम बात करें तो सीबी जॉर्ज अभी भारतीय विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी वेस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। वो यूरोप, पश्चिम एशिया और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के संबंधों की देखरेख भी करते हैं। 1993 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी जॉर्ज इससे पहले जापान, स्विट्जरलैंड, कुवैत, होली सी, लिंकटेस्टिन और मार्शल आइसलैंड में भारत के राजदूत के तौर पर भी काम कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो पहली बार ब्रीफिंग कर रहे थे इसलिए पत्रकार आकर के कुछ भी बोल करके चले जाएंगे। इतने ज्यादा वरिष्ठ हैं और तमाम जगहों पर काम करने का उनका जो लंबा अनुभव है उसको उन्होंने बताया कि देखिए हमारा अनुभव तो दूसरी जगह है, लेकिन जब भारत की बात आती है, उसकी सभ्यता की बात आती है, तो भारत जिस तरह से आपने सवाल किया है उसी भाषा में जवाब देना जानता है। विदेश विभाग में काम करने का काफी ज्यादा लंबा जो अनुभव है वो सीबी जॉर्ज को है और उन्होंने अपने राजनयिक करियर की जो शुरुआत है वो ही काहिरा से की थी। इसके बाद उन्होंने दोहा, इस्लामाबाद और वॉशिंगटन डीसी में भी काम किया। तो काफी लंबा उनका काम करने का अनुभव रहा है। अब पत्रकार ने किस तरीके से ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की और फिर उस वीडियो को सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया और भारत की जो छवि है उसको धूमिल करने की कोशिश की, जिसकी अब चारों तरफ निंदा हो रही है। देखिए, पीएम मोदी का नॉर्वे दौरा था और इस दौरान विवाद तब शुरू होता है जब स्टार्टिंग में जो मैंने आपको वीडियो दिखाया, इस तरीके का वीडियो सामने आता है। नॉर्वे के एक अखबार के पत्रकार ने सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी की इस बात के लिए आलोचना कर दी कि उन्होंने संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दिया। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी एक पोस्ट किया और पोस्ट में पत्रकार हेले लिंग ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल से बाहर निकलते हुए का जो वीडियो है वो भी शेयर किया, जिसमें पीछे से आवाज उनके सवाल करने की सुनाई देती है। अब जिस तरीके से भारत की प्रेस की स्वतंत्रता पर उन्होंने सवाल उठाया और साथ ही साथ सभ्यता पर सवाल उठाया, वो अपने आप में ये दिखाता है कि भारत से जो जेलसी है वो कहीं ना कहीं दूसरे देशों के लोगों को भी है। तो ऐसे में जो जवाब है वो सीबी जॉर्ज की तरफ से बिल्कुल करारा दिया गया कि हमारी सभ्यता पर उंगली उठाने का अधिकार आपको किसने दिया है? आप पत्रकार हैं, आपने सवाल किया। तमाम अगर पत्रकार एक साथ जमा होते हैं तो जाहिर तौर पर सभी पत्रकारों का जवाब उस वक्त देना शायद मुमकिन ना हो। ऐसे में उसको पॉइंट बना करके और प्रधानमंत्री पर इस तरीके से टिप्पणी करके उसका वीडियो वायरल करके सीधा सीधा ये नजर आता है कि आप उनकी और भारत की सभ्यता की जो छवि है उसको धूमिल करने की कोशिश कर रहे थे। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर? हमें जरूर बताइए। फिर हाजिर होंगे आपके सामने दूसरी तमाम बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।